Good afternoon, everyone. This is Abhilasha Nahata from Layal Public School, and today we all are going to start our new chapter from your history book. The name of the chapter is Civilizing the Native, Educating the Nation. So, chapter number 7, Civilizing the Native, Educating the Nation. So, this chapter is basically about how Britishers like after the decline of the Mughal empire, how they like politically empowered themselves and economically make them stable, and also how they really wanted to affect the nativeness of India. ओके कैसे वो जो भी एजुकेशनल प्रायरली स्टैब्लिश्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह थे वो कैसे उन्होंने कंट्रोल करना चाहा, उनके जो भी कस्टम्स थे, वैल्यूज थे, वो उनमें चेंजेस लाने की जो कोशिश की थी, उस चीज को हम बेसिकली इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि ब्रिटिश इंडिया जो एजुकेशन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स से पहले कैसे थी, आफ्टर दैट क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर कैसे थी, और उनके क्या थॉट्स थे, और क्या क्या उन्होंने जैसे हम मैकले का मिनट पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या कौन कौन से आपके पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की थी एजुकेशन को लेके, और जो पॉजिटिविटीज रही, जो आपके मेरिट्स रहे, जो डीमेरिट्स रहे, वो हम पढ़ने वाले हैं। और इंडियन नेशनल्स ने जो एजुकेशन को डेवलप करने के लिए जो भी एफर्ट्स लगाए थे, वी विल टॉक अबाउट इट। ओके, सो कैसे नेशनल एजुकेशन हमारी ग्रो करने लगी थी, वी विल टॉक एवरीथिंग अबाउट इट इन दिस चैप्टर। ओके, सो इन द अर्लियर चैप्टर्स यू हैव सीन हाउ ब्रिटिश रूल अफेक्टेड राजास एंड नवाब्स, peasants and tribals. In this chapter, we will try and understand that what implications it had for the lives of students. For the British in India wanted not only territorial conquest and control over revenues, they also felt that they had a cultural mission. They had to civilize the natives, change their customs and values. So first of all, we need to understand the meaning of civilizing. Civilizing means if I say in the lamest language, or कि जो लोग थे, जो नेटिव्स थे, जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, उन्हें सभ्य बनाना, उन्हें ह्यूमन जो सोसाइटी थे, सोसाइटी के जो कल्चर है, सोसाइटी के जो वैल्यूज हैं, उस चीज को सिखाना, ठीक है, एडवांस करना सोसाइटी को, टू मेक द सोसाइटी एडवांस। Civilizing the natives means natives मतलब the original inhabited of any places known as native, कि जो इंडिया में जितने भी लोग रह रहे थे ना, तो उन्हें सिविलाइज, उनको एडवांस करना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर लैंग्वेज, उन्हें सभ्य बनाना और पूरे नेशन को एजुकेट करना, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करना, ये सारी चीजें। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, अभी तक इस बुक में क्या पढ़ा कि कैसे ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज वगैरह थी वो राजास को, नवाब्स को, पीजेंट्स को, ट्राइबल्स को, जमींदार्स को, उनकी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रही थी। बट पर्टिकुलरली इन दिस चैप्टर वी विल सी how Britishers impacted the lives of स्टूडेंट्स की लाइफ्स को कैसे इम्पैक्ट किया। they just don't want to capture the territory, or they just don't want to control the revenues, but they also wanted to change the culture of India, and that's why they came up with the mission of cultural mission. We have to civilize the natives, and we have to change their customs and values. जो भी social customs हैं, values हैं, उन सबको हमें change करना है। What changes were to be introduced? How were Indians to be educated, civilized, and made into what the British believed were good subjects? The British could find no simple answers to these questions. They continued to be debated for many decades. अब मेन जो क्वेश्चंस उनके सामने अराइज हो रहे थे कि हमें क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे, हम इंडियंस को सिविलाइज्ड कैसे करें,
और जो हमारे जो गुड सब्जेक्ट्स है, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिशर्स जो भी गुड सब्जेक्ट्स हैं वो हम कैसे इंट्रोड्यूस करें। अब ऑब्वियसली बहुत सारे जो डिबेट्स जो है डेकेड्स, बहुत सालों तक जो है, बहुत डेकेड्स तक जो है ये डिबेट चलती रही। सो नाउ our first topic of this chapter, how the British saw education. Let us look at what the British thought and did, and how some of the ideas of education that we now take for granted evolved in the last 200 years. In the process of this inquiry, we will also see how Indians reacted to British ideas and how they developed their own views about how Indians were. अब देखिए, आज तो हम जो भी whatever the education we are getting, the school system we are having, the uniform system, जो स्कूलिंग के बाद आपकी ये कॉलेज लाइफ है उस चीज को देखते हैं, द बुक्स, द क्वेश्चन पेपर्स, द एग्जामिनेशन, व्हाटएवर वी आर सीइंग टुडे, ये सब हमारे लिए बहुत हम ग्रांटेड लेते हैं, वी आर टेकिंग इट सो ग्रांटेड, लाइक बट ये जो लास्ट 200 इयर्स है जो एजुकेशन सिस्टम है काफी चेंज हुआ है, काफी इवॉल्व हुआ है। ओके अब ब्रिटिशर्स के जो आइडियाज थे, इंडियंस ने बहुत ज्यादा इस चीज को लेके रिएक्ट किया था, ठीक है, उनके क्या रिएक्शंस था, इस चीज को अपोज भी किया, कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया, ठीक है। नाउ द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ओरिएंटलिज्म, ठीक है, ओरिएंटलिज्म क्या होता है या फिर ओरिएंटलिस्ट क्या होता है, पहले उस चीज को समझते हैं। ओरिएंटलिज्म Orientalism means literature and cultural studies, ठीक है, literature and cultural studies, especially of the you can say जो एशिया के जितने भी आपके स्कॉलर्स थे, राइटर्स थे, डिजाइनर्स थे, उनको ओरिएंटलिस्ट बोला गया है, ठीक है, जो लिटरेचर और कल्चरल स्टडीज को पढ़ते थे उनको हम ओरिएंटलिज्म बोलेंगे, और जो स्कॉलर्स थे, लिटरेचर स्कॉलर्स थे, लेक्चरर्स थे, ठीक है, या फिर जो पेंटर्स वगैरह थे, जो लैंग्वेज को, जो लिंग्विस्ट थे, लिंग्विस्ट जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता है उसे हम लिंग्विस्ट बोलते हैं, तो वो जो स्पेसिफिकली एशिया के, ठीक है, उनको क्या है, ओरिएंटलिस्ट बोला है। सो द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, in 1783 a person named William Jones arrived in Calcutta. He had an appointment as a junior judge at the Supreme Court that the company had set up. In addition to being an expert in law, Jones was a linguist. He knows various languages. He knows and he can study, he can speak various languages. He was a linguist. He had studied Greek and Latin at Oxford. Greek और Latin उन्होंने Oxford University में पढ़ी. Knew French and English, had picked up Arabic from a friend and also learnt Persian. Now look, he knows Greek, Latin, French, English, Arabic, and even उनको Persian भी आती थी. That's why he was known as linguist, because he knew so many languages. Okay. At Calcutta, he began spending many hours a day with pundits who taught him the subtleties of Sanskrit language, grammar, and poetry. Yes, अब कैलकाटा में वो घंटों पंडितों के पास बैठे रहते थे और वो क्या सीखते थे, वो संस्कृत लैंग्वेज जो है वो सीख रहे थे, संस्कृत लैंग्वेज, उसकी ग्रामर, उसकी जो पोइट्रीज वगैरह थी, ये सारी चीजें वो क्या कर रहे थे। ही वॉज अ क्विक लर्नर, मतलब लैंग्वेज बहुत अच्छे से वो ग्रैस्प कर सकते थे, मतलब ही वॉज अ लिंग्विस्ट। तो अब संस्कृत भी वो क्या है सीख रहे थे, मतलब छोटी से छोटी चीज जो बारीकियां थी वो भी समझ रहे थे, सब्टिलिटीज जो है उस पे फोकस कर रहे थे। सब्टिलिटीज का मतलब होता है बारीकियां, ठीक है, छोटी से छोटी चीज को वो जान रहे थे, पहचान रहे थे। Soon he was studying ancient Indian texts on law, philosophy, religion,
politics, morality, arithmetic, medicine and the other sciences. और धीरे धीरे अब उन्होंने क्या स्टार्ट करना कर दिया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया था जो एंशियंट, जो पुरानी इंडियन टेक्स्ट थी, चाहे वो लॉ पे हो, फिलॉसफी में हो, रिलीजन हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, मोरालिटी हो गया, अरिथमेटिक, मेडिसिन या जितने भी और भी साइंस की जो बुक्स वगैरह थी, जो टेक्स्ट थे, उन्होंने उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया था. Jones discovered that his interests were shared by many British officials living in Calcutta at the time. Englishmen like Henry Thomas Colebrook and Nathaniel Halhed were also busy discovering the ancient Indian heritage, mastering Indian language and translating Sanskrit and Persian works into English. Together with them, Jones set up the Asiatic Society of Bengal and started a journal called Asiatic Researches. अब जॉन ने धीरे धीरे उसकी जो डिस्कवरीज थी, ठीक है, जो इंटरेस्ट था उसका, और भी जो दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे ना, उनके साथ शेयर करना स्टार्ट कर दिया था. उसमें से एक थे हेनरी थॉमस कॉलब्रुक और एक थे नैथानियल हैलहेड. वो भी इंडियन हेरिटेज को या और जो इंडियन लैंग्वेजेस थे उसको पढ़ रहे थे. वो संस्कृत में जो लिखा था, पर्शियन में जो लिखा था, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे, और तीनों ने मिलके एक जर्नल स्टार्ट किया, एशियाटिक रिसर्चेस करके. Jones and Colebrook came to represent a particular attitude towards India. They shared a deep respect for ancient cultures, both of India and the West. Indian civilization, they felt, had attained its glory in the ancient past, but had subsequently declined. अब उनके according they respected both the traditions, both the cultures, ancient culture of India as well as of the West. और उनके अकॉर्डिंग जो इंडियन सिविलाइजेशन थी, मतलब वो उसकी जो ग्लोरी थी, मतलब जो चमक थी, एक जो जितना अच्छा एंशियंट हिस्ट्री था हमारा, जो हमारा ट्रेडिशन था, जितना अच्छा था, उतना ही धीरे धीरे क्या होने लग गया था, वो डिक्लाइन होने लग गया था. In order to understand India, it was necessary to discover the sacred and legal texts that were produced in the ancient period. अब इंडिया को समझने के लिए, इनकी सबटलिटीज को समझने के लिए, बारीकियों को समझने के लिए कि इंडिया क्या था, कैसा रिलीजन था, अब बहुत सारे सेक्रेड और लीगल टेक्स्ट को उन्हें डिस्कवर करना पड़ा, और जो एंशियंट टाइम से बिलोंग करते थे, और उन्हें स्टडी करनी पड़ी. For only those texts could reveal the real ideas and laws of the Hindus and Muslims, and only a new study of these texts could form the basis of future development in India. अब इन सब टेक्स्ट को जो रियल आइडियाज थे, लॉज थे हिंदुइज्म के, इस्लाम के, उन्हें पढ़ना, उन्हें स्टडी करना बहुत जरूरी था अगर इंडिया के फ्यूचर के, इंडिया का डेवलपमेंट अगर उन्हें देखना था तो. So Jones and Colebrook went about discovering ancient texts, understanding their meaning, translating them, and making their findings known to others. अब धीरे धीरे उन्होंने डिस्कवर करना स्टार्ट किया, एंशियंट जो टेक्स्ट थे इंडिया के, उन्हें डिस्कवर करना स्टार्ट किया, फिर उसे ट्रांसलेट किया, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनकी जो फाइंडिंग्स थी उसे स्प्रेड करना क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था. This project, they believed, would not only help the British learn from Indian culture, but it would also help Indians rediscover their own heritage. उनका जो heritage था, उनका जो उनकी जो अच्छाइयाँ थी, जो ancient text में जो भी चीजें, अच्छी चीजें लिखी हुई थी, या फिर जो उनका reality था, उस चीज को जानने में हेल्प करेगी. ठीक है, इंडियंस को भी उनका खुद का जो रिलीजन था, उनका जो इनहेरिटेंस था, ठीक है, उसे जानने में, रीडिस्कवर करने में हेल्प करेगी. एंड अंडरस्टैंड द लॉस्ट ग्लोरीज ऑफ देयर पास्ट, जो भी चीजें उनकी खत्म हो चुकी थी, ठीक है, जो भी इनहेरिटेंस वगैरह था, वो उनका जो चला गया था, जो उन्हें पता नहीं था, वो भी उसे समझने के लिए भी उन्हें क्या है, हेल्प करेगी. इन दिस प्रोसेस द ब्रिटिश वुड बिकम द गार्जियंस ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज इट्स मास्टर. और इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे, इंडियन कल्चर के गार्जियंस बन गए और उनके मास्टर्स भी बन गए थे. ठीक है. Influenced by such ideas, many company officials argued that the British ought to promote Indian rather than Western learning. They felt that institutions should be set up to encourage the study of ancient Indian texts and teach Sanskrit and Persian literature and poetry.
The officials also thought that Hindus and Muslims ought to be taught what they were already familiar with and what they valued and treasured, not subjects that were alien to them. Alien to them मतलब जो बिल्कुल भी उनको जानते नहीं है, something which is not relevant to us, which we don't know, मतलब हमारे लिए बिल्कुल अलग है, उन्हें पढ़ना ही उनके लिए जरूरी नहीं है। ऐसी चीजें जो जिससे वो फेमिलियर हैं, जिनको वो वैल्यू करते हैं, वो चीजें हमें उन्हें सिखानी चाहिए। Only then they believe could the British hope to win a place in the hearts of the natives. Only then could the alien rulers expect to be respected by their subjects. अब ब्रिटिशर्स का क्या मानना था कि ये जितने भी आइडियाज है ना, कंपनी ऑफिशियल्स क्या मान रहे थे कि हमें संस्कृत पढ़ानी चाहिए, संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत पोट्री, पर्शियन लिटरेचर, पर्शियन पोट्री जो है इंडियंस को पढ़ाना चाहिए, एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट पढ़ानी चाहिए, और तभी हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने इन्हें ये सारी वैल्यूज बता दी और ये सारी चीजें हम अगर इन्हें पढ़ाएंगे या ऐसे इंस्टीट्यूट्स ओपन करेंगे, तो हम जो है एक जो नेटिव्स हैं, जो इनहैबिटेंट्स हैं, उनके दिलों में बहुत जगह बना सकते हैं, और जो हम बाहर से आए हैं तो वो हमें रेस्पेक्ट भी देंगे अगर हम उनको अपने सब्जेक्ट्स छोड़ के उनके खुद के एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, एंशिएंट टेक्स्ट के बारे में बताएंगे तो। ओके, सो क्लास with this object in view, a madrasa was set up in Calcutta in 1781 to promote the study of Arabic, Persian and Islamic law, and the Hindu college was established in Banaras in 1791 to encourage the study of ancient Sanskrit texts that would be useful for the administration of the country. Madrasa is an Arabic word for a place of learning, any type of school or college. College को बोला गया Arabic में, कॉलेज को, स्कूल को जहाँ पे पढ़ाई की जाती है, स्टडी की जाती है, उसको मद्रासा कहा जाता है। तो कलकत्ता में 1781 में मद्रासा ओपन किया गया था, जिसमें अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ को प्रमोट किया गया, बढ़ावा दिया गया, पढ़ाया जाता था। और बनारस में हिंदू कॉलेज को स्टैब्लिश किया गया था 1791 में, जहाँ पे संस्कृत टेक्स्ट को, जो एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट था, उसे पढ़ने के लिए, उसे इसकी स्टडीज को एनकरेज करने के लिए ये इंस्टीट्यूट ओपन किया गया। So not all officials obviously shared these views. Many were very strong in their criticism of the Orientalists. Orientalist, I already told you the meaning of Orientalist, those with a scholarly knowledge of the language and culture of Asia, जिसे एशिया के कल्चर और लैंग्वेज के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान है, जिनको नॉलेज है, जो स्कॉलर्स हैं, उनको ओरिएंटलिस्ट बोला गया है। तो बहुत सारे ऑफिसर्स जो थे वो काफी अगेंस्ट में थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे ओरिएंटलिस्ट को कि हमें उनके जो इनहैबिटेट्स का जो टेक्स्ट है उन्हें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ओके, सो दिस इज द पिक्चर, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, दिस इज द statue. He was a scholar of Sanskrit and ancient sacred writings of Hinduism. This is the statue of Henry Thomas Colebrook. And just look at this picture, Monument to Warren Hastings by Richard Westmacott, 1830, now in Victoria Memorial in Calcutta. Present day Victoria Memorial में ये statue बना हुआ है, and this image represents how Orientalists thought of British power in India. You will notice that the majestic figures of Hastings and enthusiastic supporter of the Orientalists is placed between the standing figure of a Pandit on one side and a seated Munshi on the other side. Hastings and other Orientalists needed Indian scholars to teach them the vernacular languages. Vernacular, what is the meaning of vernacular? This term is used to refer to a local language. Local language को refer करने के लिए बोला था, के लिए use किया जाता है। So tell them about local customs and laws and help them translate and interpret ancient texts. Hastings took the initiative to set up the Calcutta Madrasa and believed that the ancient customs of the country and the Oriental learning ought to be the basis of British rule in India. अब वॉरेन हास्टिंग जो थे इस स्टैच्यू में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तरफ पंडित है और एक तरफ मुंशी जी बैठे हुए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, उनसे ये चीजें, एंशिएंट जो संस्कृत टेक्स्ट है वो समझ रहे हैं और मुंशी जी से वो लिखवा रहे हैं। और ओरिएंटलिस्ट वो मानते थे कि अगर हम ये जो लोकल लैंग्वेजेस को प्रेफर करेंगे तो जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में, अगर हम इस चीज को बढ़ावा देंगे, एनकरेज देंगे, तो हमारा ब्रिटिश रूल जो है एक बेसिस बन जाएगा इंडिया का। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।
In our next class, we will talk about the later topics of this chapter. Thank you. Bye bye. Take care.